Okay, so I think I'm audible, students. Please confirm. Okay, so I think it's audible now. Okay, so I think it's audible now. Okay, so I think it's audible now. So, students, okay, so a very good morning to all of you, students. And today I am going to proceed with, I will say, that is whatever we have started in the last three classes, that is who's who. Okay, so some important personalities, some important persons that are important for us, and in the news also, so they are important for us, and with which organization and with, I will say, what things they are related with. So we have to study that. We have to study their, I will say, static part and the persons in news. Okay, so let's start today's class. I will say, so this is fourth lecture. Okay, so important persons, friends, I have already discussed with you, and this we have discussed already. And last time, uh, so this I will say PDF is already shared with you in the description of these, I will say, regular non-tech classes. So you can download this PDF. Okay, and I will update this PDF for you. I will update this presentation or PDF file for you. Okay, every week. So you can study from here. And some important person last time that we have studied. So let's revise those. These chiefs we have already discussed. All security forces we have already discussed. UPSC, FTII, SBI we have discussed. CVC we have discussed. NABARD already I have discussed with you. Last time we started with this organization, so that is World Bank, and we discussed about this organization. Okay, and so World Bank or IMF में difference क्या है, I have already discussed with you. Okay, so जो World Bank है, so that provides grants and loans to countries at less interest rate as compared to IMF, so that is International Monetary Fund. Okay, so World Bank is an international financial institution or that provides loans and grant to governments of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects. कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो ये प्रोवाइड करता है. इसमें फर्दर दो इंस्टीट्यूशंस हैं, IBRD एंड IDA. ओके, सो मेन जो गोल है वर्ल्ड बैंक का, सो दैट इज रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. लास्ट टाइम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. ओके, फॉर्म कब हुआ है? 1944 में. और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है. और करंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है? दैट इज डेविड मेलपॉज. एंड MD एंड CFO कौन है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट इज अंशुला कांत. Okay, so chief economist already discussed, that is Carmen Reinhardt. Okay, then
We have discussed these are the organization, I will say. So that is World Bank Group is family of further 5 international organizations. So that is, I will say, IBRD, IDA, IFC, International Financial Corporation, Multilateral Investment Guarantee Agency. We will discuss these organizations in detail whenever I will discuss international organization topic. Okay, so currently we are having for IBRD, we are having 89 member countries, where IDA has 173 members. Each member state of IBRD should also be a member of IMF. Now, IMF formed in 1945. Okay, promote international monetary cooperation, facilitate international trade, balance of payment. We have discussed, and important one for us is headquarters Washington DC. Members is 190. Members are 190. MD is important name for us, so that is Kristalina Georgieva. Very important name, I will say. Again, question can be asked. Question has been asked many times. Who is the current managing director of IMF, World Bank? Okay, so these type of question has been asked in the exams. Okay, so main difference I have already discussed with you in their respective purpose and function. IMF oversees the stability of world's monetary system, mainly related to the currency. Okay, while World Bank goal is to reduce poverty by offering help to middle income and low income countries. So this we have already discussed. And I have given you the example also of India's, I will say, that is crisis of 1991. Okay, so उस टाइम जो हेल्प की थी किसने की थी? IMF ने किया था. World Bank was created at 1944 Bretton Woods Conference along with IMF. So this conference is very important when you will study United Nations. So from here we will study. Okay, so how it all started. So that is Bretton Woods Conference. Again, important name. So senior bureaucrat Rajesh Kuller. तो ये न्यूज में थे अभी recently. So that is appointed as executive director. Okay. 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं एंड अभी रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया गया है. कहां से? रिप्रेजेंटिंग बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड श्रीलंका. सो दिस न्यूज लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड. नेक्स्ट वन इज एडीबी, a regional development bank. Same, I will say, same function as World Bank does, but I will say mainly concentrated for countries of Asia. So this I have already discussed. Now ADB has 68 members, so that is very important for us. How many members? 68. India is also a member. Okay, कब फॉर्म हुआ? 1966 में फॉर्म हुआ. ओके, हेडक्वार्टर्स कहां पर है? मनीला, फिलीपींस. फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला. ओके, and same function as World Bank does. So, but I will say for Asian countries. So Samir Kumar Khare appointed executive director of ADB. So we have already discussed this. Then Indian Railway board chairman, CEO and chairman. This I have already discussed. Okay, so that is Suneet Sharma. Suneet Sharma. Suneet Sharma. Again, question can be asked. Then National Dairy Development Board. Again, I have discussed with you. BCCI, important organization, always in news when you will study. I will say the sports page of newspaper. So BCCI name will appear there. Okay, so that is important for us. So men's coach is Ravi Shastri and women's coach is Ramesh Pawar. And president of BCCI is Saurav Ganguly. So three name important are related to BCCI. So these are men's domestic tournament and women's domestic tournament that are being organized by BCCI. तो ये important है यार, स्पोर्ट्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं. रणजी ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, आईपीएल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? तो क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट. ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है. उसके बाद सीके नायडू ट्रॉफी ये भी पूछ लेते हैं, कूच बिहार ट्रॉफी, वीनू माकंड ट्रॉफी. ISRO we have discussed last time in detail. ठीक है, it operates under Department of Space. कहां पर है हेडक्वार्टर? दैट इज बेंगलोर, कर्नाटका. ओके, चेयरमैन इज के सिवान. लास्ट टाइम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल. ठीक है, अब इनका जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश. इसके बाद कहां पर है? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन. एंड प्रपोज्ड इज कुलेशकेरा पट्टनम. तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों लॉन्चिंग स्टेशन. ओके, देन ये बताया था मैंने कि यहां पर क्यों प्रपोज किया गया है.
ठीक है, डॉग लेग मैनेवर आई हैव डिस्कस्ड विद यू। श्री हरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। Then last time we have discussed about Dr. Vikram Sarabhai also, which is known as father of India's space program. Dr. Vikram Sarabhai. हाँ जी, तो you can leave यार, you can leave. Okay. Then Vikram Sarabhai, about Vikram Sarabhai, we have discussed these things. Okay. And physical research laboratory in Ahmedabad was founded by him in 1947. So that is important for us. So which are the awards? So that is Shanti Savru Bhatnagar, Padma Bhushan, Padma Vibhushan. Then father of India's nuclear program, Homi Jahangir Baba. Again, important name for us. Homi Jahangir Baba. Then Sri Harikota location. I want to make you see through this map. Okay. So next one is this ISRO space centers and units across India. So ये मैंने कुछ आपको यहाँ पर इसरो के जो यूनिट्स हैं वो मैंने बताए थे, ठीक है। तो सैटेलाइट के जो पार्ट्स हैं तो कोई एक जगह नहीं है, तो अलग अलग जगह इनकी यूनिट्स हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मेनली बेंगलोर में है कंसंट्रेटेड, एंड अदर वन इज अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। देन बेंगलुरु इज आई विल से that is main headquarter is in Bengaluru. Okay. Then Thiruvananthapuram में Vikram Sarabhai Space Center also important for us. Vikram Sarabhai Space Center, that is Thiruvananthapuram. Okay. And other locations are important for us. Dehradun बताया था मैंने, remote sensing, Indian Institute of Remote Sensing. So that is important for us. Then next one is a DRDO. Next one is DRDO. Yes, Shri Harikota, Andhra Pradesh. Next one is DRDO. We have already discussed this. So an agency under the Department of, I will say this, in Ministry of Defense, charged with military's research and development, headquartered in Delhi, India. Okay, तो जितना भी आपका आई विल से वेपन से रिलेटेड है, सो दैट इज डन बाय, उस पे जो रिसर्च होती है, जो डेवलपमेंट होती है, सो दैट इज डन बाय डीआरडीओ. सो आई विल से दैट जो इसके चेयरमैन है डीआरडीओ के, सो दैट इज जी सतीश रेड्डी. सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, जी सतीश रेड्डी. Next, Dr. Abdul Kalam Island, formerly known as Wheeler Island, that is on the coast of Odisha, India. Okay, so that is also important for us. So व्हीलर आइलैंड्स पर यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है. डीआरडीओ जो भी इक्विपमेंट, जो भी वेपन डेवलप करता है, ठीक है, तो मेनली जो मिसाइल की जो टेस्टिंग होती है वो यहाँ पर होती है, ठीक है. और इसका नेम अब क्या कर दिया गया? डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड. क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, जितने भी आपके जो टेस्टिंग स्टेशन हैं वो कहां पर हैं? किसी ना किसी सी के पास हैं, बे के पास हैं, किसी वाटर बॉडी के पास हैं. जैसे आपने श्री हरिकोटा देखा, कोस्ट पर है, तो सिमिलरली ये जो आपका डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड है, ये भी यहाँ पर कहाँ है? बे ऑफ बंगाल के पास. ओके. So last time we have discussed this thing, that is UR Rao. So that is also known as Satellite Man of India. ठीक है. तो Google Doodle, you know that Google Doodle is a special temporary alteration of the logo on Google's home page. ठीक है. Intended to memorize, I will say commemorate holidays, events, achievements and notable historical figures of particular countries. ठीक है. तो यहां पर किसको शो किया गया था गूगल डूडल पर? सो दैट इज UR राव, जिन्हें की सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. अगेन इनकी डेथ हो चुकी है, तो इनको मेमोराइज करने के लिए तो एक इंडियन साइंटिस्ट थे जो कि इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं. ओके. सो ही डाइड इन द ईयर 2017. तो अगेन यू न्यूज में थे, तो दैट इज उदुपी रामचंद्र राव. तो अगेन इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस, UR राव. Now we are going to start with this
Okay, so we are going to start with this. I will say this news, so that is important for us. So that is one name is Mary Kom. So fame, I will say Indian boxer Mary Kom. Indian boxer Mary Kom. Important name है, ठीक है. स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैरी कॉम का जो नेम है, आप ऑफ कोर्स आई विल से बॉक्सिंग से रिलेटेड इंडिया की तरफ से जो इंपॉर्टेंट नेम है, सो दैट इज मैरी कॉम. ठीक है. So Indian boxer Mary Kom was appointed as the chairperson of International Boxing Association AIBA Champions and Veterans Committee on 3rd March 2021. ठीक है. अब ये जो एसोसिएशन है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है, इसकी एक कमेटी फॉर्म हुई है. ठीक है. तो उसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया. और मेन बात क्या है कि इंडिया से है. क्लियर है. तो उसका चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया? दैट इज इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम. नाउ हाइलाइट्स दिस, आई विल से इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, सो दैट इज दिस फेलो, दैट इज उमर क्रेमलेव. उमर क्रेमलेव इज द I will say president of Indian, that is International Boxing Association. Now, so this committee was established in this, so that is in 2020. So it comprises most of the respected boxing veterans and champions from across the world who have achieved some significant goals and are ready to share their experience. ठीक है. तो यार ऐसी कमेटी का चेयरमैन बनना जिसमें कि ऑलरेडी आई विल से क्या है, ऑलरेडी क्या है, चैंपियंस हैं बॉक्सिंग से रिलेटेड. ठीक है. और वो भी एक इंडियन, सो दैट इज इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस. ओके. तो इस कमेटी का जो चेयरमैन बनाया गया, किसको बनाया गया? दैट इज मैरी कॉम. नाउ अब मैरी कॉम अगर न्यूज में था, तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. तो मैरी कॉम जो इंडियन बॉक्सर हैं, उनकी अचीवमेंट क्या क्या रह चुकी हैं, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके. Now, Mary Kom is an Indian boxer. She is also a current member of Indian Parliament. So she was nominated as the member of upper house of the parliament, that is Rajya Sabha, in 2016 by President Ramnath Kovind. ठीक है. जैसे कि आपको पता है कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है. अगर कोई फेमस कोई पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपने फील्ड में अगर कोई डिस्टिंग्विश काम किया है, डिस्टिंग्विश वर्क he or she has done in their respective fields, so president can appoint those persons. Okay. So she has created many histories for India in field of boxing. Okay. She is the only female boxer who have become the world boxing champion for a record of 6 times. Again important fact. ठीक है. So world boxing champion, only female boxer for a record of 6 times. ठीक है. तो 6 बार बनना. ठीक है. वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, ओनली फीमेल बॉक्सर, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड शी इज आल्सो टैग्ड एज द ओनली बॉक्सर हु हैव वॉन 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स. 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स. तो ये अचीवमेंट है इनकी. ओके. And she is also the only Indian female boxer who qualified for 2012 Summer Olympics, in which she won a bronze medal in this 51 kg category. So again important for us. ओके. तो मैरी कॉम की जो अचीवमेंट्स हैं वो सारा आपको पता होना चाहिए. और करंट में दैट इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो कमेटी बनी है, उसका जो चेयरपर्सन है कौन है? दैट इज फ्रॉम इंडिया, एंड दैट इज मैरी कॉम. दैट इज मैरी कॉम, दैट इज चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी. ओके. तो ये कमेटी कब एस्टेब्लिश हुई थी? दिसंबर 2020 में. और इसके प्रेसिडेंट आई विल से दैट इज उमर क्रेमलेव. इस इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है दैट इज उमर क्रेमलेव. इंपॉर्टेंट नेम है ये हमारे लिए. तो इनका एक्सपीरियंस काफी है, नॉलेज काफी है. तो जो ये प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव, और वो काफी कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो कमेटी है ये एक सक्सेस होगा. ठीक है. ऑफ कोर्स. तो इस कमेटी को अगर कोई हेड कर रहा है इंडियन, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. यस. नेक्स्ट वन इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स. अब देखिए क्या है, इन्हें काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं. अगर मैं इंडिया की बात करूं,
ठीक है, सिविलियन अवार्ड की बात करूं सो दैट इज पद्म भूषण, ठीक है। सबसे अगर मैं लास्ट से स्टार्ट करूं सो देर आर 4 सिविलियन अवार्ड, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न को छोड़कर इनको तीनों अवार्ड मिल चुके हैं। पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म श्री मिल चुका है 2006 में, देन उसके बाद 2013 में पद्म भूषण मिल चुका है और 2020 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। एम आई क्लियर और नॉट? एम आई क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ओके, सो ये है, इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ना इसमें जो रिलेटेड आई विल से दैट इज अवार्ड्स हैं, जो कि सिविलियन अवार्ड्स की बात करते हैं। जब भी मैं किसी पर्सनैलिटी की बात करूंगा यहाँ पे, या अगेन यस, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स like Olympics games and other things I will discuss in detail. Okay, so don't worry about that. So whatever I am covering the topic, I will say that is this important personalities. Okay, so we will cover these topics also in detail related to sports. Okay, so अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं किसके बारे में, ये जो सिविलियन अवार्ड्स हैं इनके बारे में बताना चाहता हूं, जिससे कि स्टैटिक में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, स्टैटिक पार्ट में see now the hierarchy of civilian awards, the hierarchy of civilian awards, so that is Bharat Ratna, that is highest civilian award of India, Bharat Ratna, highest civilian award of India. ओके, तो सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है सो दैट इज कौन सा है? भारत रत्न। तो यार अवार्ड से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अवार्ड से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अवार्ड हमें पता होने चाहिए, सिविलियन अवार्ड खासकर, ठीक है। देन सेकंड हाईएस्ट इज पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट इज पद्म भूषण एंड फोर्थ हाईएस्ट इज पद्म श्री, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके के होते हैं ये अवार्ड्स, ठीक है। तो ये आप सारी यहां पर चेक भी कर सकते हो, क्लियर है? हाँ जी, तो ये चारों जो सिविलियन अवार्ड्स हैं सो दैट आर अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस, दीज 4 सिविलियन अवार्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। सो लेट्स स्टडी देम इन डिटेल वन बाय वन। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1954। तो यार ये जो भारत रत्न जो अवार्ड है इसे कब स्टार्ट किया गया? 1954 में, ठीक है। तो जितने भी पर्सन हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है वो सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके नेम्स इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक में क्वेश्चन पूछ लेता वो, ठीक है। सो एनी पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, occupation, position, gender or religion is eligible for this award. Okay, and on conferment of this award the recipient receives a certificate, a sanand signed by president and a medal. Okay, तो क्या मिलता है इसमें? एक सर्टिफिकेट मिलता है साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड अ मेडल। ओके, so it is awarded in recognition of exceptional service or performance of the highest order in any field of human endeavor. ठीक है, तो अगर आपने किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है तब आपको ये अवार्ड दिया जाता है। कब स्टार्ट हुआ है? 1954 में, दैट इज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर भारत रत्न से मुझे अगर कुछ पूछना है तो मैं ईयर पूछ सकता हूं यार, कब इंस्टीट्यूट किया गया था इसे, क्लियर है? सो दैट इज 1954, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इसके अलावा भारत रत्न आज तक जितनी भी पर्सनैलिटीज को मिला है उनके नेम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको और ज्यादा डिटेल में मैं आपको करवाऊंगा जब अवार्ड्स वी विल डू। ओके, तो एक बार आपको पता होना चाहिए जो भी टर्म्स यहां पर अपीयर हो रही हैं। नेक्स्ट इज पद्म अवार्ड्स, ये भी 1954 में ही स्टार्ट हुए हैं और हर साल इनको कब अनाउंस किया जाता है? रिपब्लिक डे पर। हर साल इन्हें कब अनाउंस किया जाता है? रिपब्लिक डे पर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो फर्दर इसमें 3 कैटेगरीज हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। सो पद्म श्री इज द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, 4th हाईएस्ट। थर्ड हाईएस्ट कौन सा है? दैट इज पद्म भूषण, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पद्म विभूषण एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो यार ये आपको इसका आई विल से इसका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है ये पता होना चाहिए आपको कि फर्स्ट कौन सा है, ठीक है, सबसे कौन सा है, सबसे ऊपर भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, ये आपको पता होने चाहिए।
अब देखो क्या है कि ये जो सीरीज है रेगुलर नॉन टेक की, दैट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. From very basic, I have started these, I will say this series. Okay. So as we will proceed further, so I will inculcate some more facts and some more new things in these topics. Okay. Unlike national honors, the Padma Awards do not include cash allowances, benefits, or special concessions in rail or air travel. Okay. And as per 1955 judgment, 1995 judgment of Supreme Court of India, or no titles are associated with Bharat Ratna or any of the Padma Awards. Honorees cannot use them or their initials at suffixes, prefixes, और प्री एंड पोस्ट नॉमिनल्स अटैच टू द अवॉर्डीज नेम. ठीक है, तो जितने भी पर्सन को वो अपने नेम के आगे भारत रत्न यूज नहीं कर सकते हैं एज टाइटल. क्लियर और नॉट? तो मेन बात ये है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 1995 में. ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था कि जिन्हें भी पद्म अवार्ड्स मिले हैं, और जितने पर्सन को भी भारत रत्न अवार्ड मिला है, ओके, सो तो वो उन्हें एज टाइटल यूज नहीं कर सकते हैं. क्लियर है? These awards seek to recognize work of any distinction and is given for distinguished and exceptional achievements or services in all fields of activities, disciplines such as art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs, civil service, trade and industry. ठीक है, तो ये सारे फील्ड्स हो सकते हैं एटसेट्रा. तो कई बार देखोगे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, पद्म अवार्ड्स. Next one is military awards. Next one is military awards. So students, what I want from your side, just I will say, just have a glance, just have a look for these awards कि सर ये जो मिलिट्री अवार्ड है, दैट इज वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स. अगर मुझे बात करनी है, सी हेयर, अगर ब्रेवरी से रिलेटेड मुझे बात करनी है, ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा अवार्ड आएगा? सो दैट इज परमवीर चक्र. परमवीर चक्र. देन नेक्स्ट वन इज महावीर चक्र, देन वीर चक्र. सो दैट इज वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स. कब स्टार्ट हुए हैं? दैट इज 26 जनवरी 1950. क्लियर है? नेक्स्ट वन इज पीस टाइम अवार्ड्स. नेक्स्ट वन इज पीस टाइम अवार्ड्स. ठीक है, सो दैट इज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र. अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र. नेक्स्ट वन इज वॉर टाइम पीस टाइम सर्विस अवार्ड्स. पीस टाइम अवार्ड समझ आ गए, शांति पुरस्कार. ठीक है, देन वॉर टाइम पीस टाइम सर्विस अवार्ड्स. सेना मेडल आर्मी, नौ सेना मेडल नेवी, वायु सेना मेडल एयरफोर्स. अगेन सम मेडल्स वॉर टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस. अगर किसी ने युद्ध के दौरान, आई विल से वॉर के दौरान अगर किसी ने डिस्टिंग्विश सर्विस दी है तो उन्हें ये मेडल्स मिल सकते हैं. ठीक है, पीस टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस, ये मेडल दिए जा सकते हैं. एंड अदर नेशनल अवार्ड्स. ठीक है, तो अगर मुझे मिलिट्री अवार्ड से रिलेटेड बात करनी है तो ये तीन मेन अवार्ड्स है मेरे लिए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ब्रेवरी से रिलेटेड है ये. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया, तो नेम क्या है? परमवीर चक्र. परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर, देन वीर चक्र. स्टैटिक में क्वेश्चन पूछ लेता हो कई बार. ठीक है, इन्हें ऑर्डर में लगाओ, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र. इस करके मैं तुम्हें यहां पर बता रहा हूं. देन पीस टाइम अवार्ड्स. कई बार वो क्वेश्चन पूछेगा, यार ये कौन से हैं? ये वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड हैं, ये पीस टाइम अवार्ड्स हैं, ये वॉर टाइम पीस टाइम सर्विस अवार्ड्स हैं, कौन से हैं ये? कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए. अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र. Next one is other national awards. Other national awards, again I will say a important name for us. So that is Sardar Patel National Unity Award. Sardar Patel National Unity Award. सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड ऐसे पर्संस को दिया जाएगा जो कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करते हैं. क्लियर है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड. क्लियर है? सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड. आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल.
एंड नेक्स्ट वन इज चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड बाय स्वच्छ भारत मिशन एंड नीति आयोग। विमेन के लिए कौन सा अवार्ड इंपॉर्टेंट है? नारी शक्ति पुरस्कार। अगर आप न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं और उनमें ये अवार्ड्स अगर मेंशन हैं, क्लियर, देन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं सभी। ठीक है, मेनली आई विल से जैसे नारी शक्ति पुरस्कार है, देन चिल्ड्रन से रिलेटेड कौन सा है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, नेशनल बाल श्री ऑनर, अगेन इंपॉर्टेंट। सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए इसका भी अगर मैं बोलूं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, तो ये कैटेगरी आपको पता होना चाहिए कब स्टार्ट हुए हैं और इनका ऑर्डर क्या है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा आता है, सबसे नीचे कौन सा आता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, और कौन से फील्ड में दिया जाता है ये वो आपको पता होना चाहिए, हल्का सा एक आइडिया होना चाहिए। लिस्ट हमें किसकी याद करनी है? दैट इज भारत रत्न, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, ऐसे पर्सन की लिस्ट हमें याद करनी है। ओके, तो ये अवार्ड्स हैं सारे। देन मेडिसिन में हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, सो डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड, instituted by Medical Council of India, presented by President of India. Then literature awards, again that is important for us, highest literary award in literature of India, so that is I will say Gyanpith award. Then next is Sahitya Academy award, Sahitya Academy fellowship, Saraswati Samman, very important, Vyas Samman, Saraswati Samman, Vyas Samman, Saraswati Samman. Then okay, so this award, Gyanpith award, Sahitya Academy award, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये जो चारों अवार्ड्स हैं अगेन दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। लिटरेचर से रिलेटेड कौन से अवार्ड हैं? सबसे ऊपर कौन सा है? दैट इज दिस ज्ञानपीठ अवार्ड, देन साहित्य अकेडमी, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। नेक्स्ट स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स अगेन आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, हाईएस्ट अगर अवार्ड बात करूं स्पोर्ट्स में, दिस राजीव गांधी खेल रत्न। ओके, देन अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य, कोचिस के लिए, कोचिस के लिए कौन सा है? द्रोणाचार्य। ठीक है, तो ये चारों अवार्ड इंपॉर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ठीक है, देन नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ सिनेमा एंड आर्ट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सो अगेन मैं ये बोलूंगा कि ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कौन से अवार्ड कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड हैं। ठीक है, कौन से फील्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछ लेगा यार ये अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है, किससे रिलेटेड है? चिल्ड्रन से रिलेटेड है, लिटरेचर से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है, मिलिट्री से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है ये? क्लियर? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन फ्रेम कर देता है वो, तो हमें ये सारा ध्यान में रखना है। अगर हमें एक बार पता होगा कि कौन से फील्ड में ये दिए जाते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स। ओके, देन देर इज जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। Yes, so these were the awards which I have to discuss with you now today. Again, one important news for us. First one was Mary Kom, ठीक है, जिनको अभी रिसेंटली क्या किया गया है, कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, इंडिया से हैं, इंपॉर्टेंट नेम है हमारे लिए, तो इस करके स्टडी किया हमने। ठीक है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा उसके बारे में। ठीक है, तो एक कमेटी बनी है जिसमें मैरी कॉम को चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, काफी सारे आई विल से एक्सपीरियंस बॉक्सर्स हैं। ठीक है, तो उनको हेड करेंगी कौन? इंडिया से मैरी कॉम। Second news is again related to I will say female, so that is Preeti Sinha. Preeti Sinha to lead United Nations Capital Development Fund. Preeti Sinha to lead United Nations Capital Development Fund, UNCDF. So that is important for us. ठीक है, तो इन्हें कौन जो लीड करेंगी? सो दैट इज दिस लेडी, सो दैट इज प्रीति सिन्हा, इंडियन ओरिजिन।
कौन से ओरिजिन की हैं, कहां से, मूल रूप से कहां से बिलोंग करती हैं, इंडिया से, इंडियन ओरिजिन, दैट इज प्रीति सिन्हा, अगेन इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस। ठीक है, क्या बनाया गया इन्हें, एग्जेक्टिव सेक्रेटरी, एग्जेक्टिव सेक्रेटरी। शी इज एन इंडियन ओरिजिन इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंकर। तो प्रीति सिन्हा को किस, और आई विल से किसका क्या बनाया गया, एग्जेक्टिव सेक्रेटरी बनाया गया, सो दैट इज दिस यूएनसीडीएफ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट नेम से क्वेश्चन आ सकता है, या इससे रिलेटेड पूछ लेंगे, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड का आई विल से एग्जेक्टिव सेक्रेटरी किसको बनाया गया, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। So executive secretary is the highest leadership rank in this, so that is UNCDF. Then जो मेन जो इसमें काम रहने वाला है, सो शी विल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द माइक्रो फाइनेंस हेल्प टू विमेन, यूथ, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस बिलोंग टू द आई विल से दिस अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज। ठीक है, तो जो इसमें जो माइक्रो फाइनेंस असिस्टेंस है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस असिस्टेंस है किसको, दैट इज कौन सी कम्युनिटीज को, दैट इज अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज, सो दैट इज विमेन, यूथ, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। तो इनको क्या करेंगी ये, ठीक है, तो इनका जो मेन फोकस रहने वाला है वो माइक्रो फाइनेंस असिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस आई विल से यूएनसीडीएफ के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये कब फॉर्म हुआ है, 1966 में फॉर्म हुआ है। ठीक है, कौन सी इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखिए क्या है, यूनाइटेड नेशंस की काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, अब the organization makes public and private finance work for the poor in 14 least developed countries of the world. So this is important for us. Function क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएनसीडीएफ, कैपिटल डेवलपमेंट फंड है, ये जो यूनाइटेड नेशंस का, ये कहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस वर्क फॉर द पुअर। ठीक है, फॉर द पुअर कौन सी कंट्रीज में, इन 47 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देन व्हाट आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिनके की सोशो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, वो अगर उसमें वो कंट्रीज काफी पुअर परफॉर्म करती हैं। ठीक है, सो लोएस्ट इंडिकेटर्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो द लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। ओके, एंड यू कैन सी हेयर नाउ। तो अगर किसी भी कंट्री को मुझे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री बताना है तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी काफी ज्यादा रहने वाली है। देन उसके बाद वो कंट्री वीक रहने वाली है किसमें, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिटरेसी। देन इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो इंस्टेबिलिटी रहेगी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंस्टेबिलिटी रहेगी किसमें, एक्सपोर्ट्स में। क्लियर है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या आते हैं, किसी भी कंट्री को यूनाइटेड नेशन कैसे बताता है कि वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है या नहीं, अगर उसमें पॉवर्टी काफी ज्यादा है। ठीक है, पॉवर्टी काफी ज्यादा है, देन न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन और लिटरेसी में अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं वो कंट्रीज, तो ऐसी कंट्रीज के लिए हमारे पास एक फंड है यूनाइटेड नेशन के पास, दैट इज यूएनसीडीएफ, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो यहां पर ये माइक्रो फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, कहां पर, दैट इज दीज कंट्रीज टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। क्लियर है, तो जो पुअर कंट्रीज हैं वर्ल्ड की यार, तो उनको क्या प्रोवाइड करना है, हमें इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। एम आई क्लियर, तो उसका एग्जेक्टिव किसको बनाया गया है यहां पर, दिस एग्जेक्टिव सेक्रेटरी किसको बनाया गया, दैट इज अ फीमेल ऑफ इंडियन ओरिजिन, सो दैट इज प्रीति सिन्हा। ओके,
तो यूनाइटेड नेशंस का एक कैपिटल डेवलपमेंट फंड है जिसका कि एग्जेक्टिव आई विल से एग्जेक्टिव सेक्रेटरी एक इंडियन ओरिजिन, एक फीमेल ऑफ इंडियन ओरिजिन को बनाया गया, सो दैट इज प्रीति सिन्हा। ठीक है, क्या काम करता है यार ये यूएनसीडीएफ? ये यूएनसीडीएफ क्या करता है? माइक्रो फाइनेंस असिस्टेंस करता है। ठीक है, असल में मैं क्या बताऊंगा, ये इकोनॉमिकली क्या करता है? फाइनेंस करता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कितनी है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मैं यहां पर आपको बता चुका हूं, करंट में 46 कंट्रीज हैं एज ऑफ दिसंबर 2020। ठीक है, तो कोई भी कंट्रीज लिस्ट में रहना नहीं चाहती है, एलडीसी में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में सभी कंट्रीज इससे बाहर निकलना चाहती हैं। ठीक है, और उससे उसके लिए हेल्प कौन करता है? ये जो यूनाइटेड नेशंस की जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इकोनॉमिकली क्या करती हैं? इन्हें असिस्ट करती हैं ऐसी कंट्रीज को, ताकि इस लिस्ट से इन्हें बाहर किया जाए। एम आई क्लियर और नॉट? तो अगर कोई कंट्री में पॉवर्टी ज्यादा है, हेल्थ न्यूट्रिशन लिटरेसी में काफी पीछे है, ठीक है, एक्सपोर्ट में काफी पीछे है, ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन कौन सी लिस्ट में डालता है? सो दैट इज दिस एलडीसी लिस्ट। ठीक है, तो एज ऑफ दिसंबर 2020 कितनी कंट्रीज इस लिस्ट में हैं? दैट इज 46। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस की एक कैपिटल फंड है। ठीक है, तो उसका जो एग्जेक्टिव ये जो बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया गया, किसको बनाया गया? सो दैट इज दिस फीमेल ऑफ इंडियन ओरिजिन, सो दैट इज प्रीति सिन्हा। तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया से रिलेटेड है। ओके, असल में अगर इकोनॉमी से मुझे अगर बात करनी है यूनाइटेड नेशन की, तो उसके लिए ये आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो फर्दर एक फंड है ना यार, ये तो एक फर्दर आप क्या कर रहे हो? एक फंड प्रोवाइड कर रहे हो, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। माई क्लियर? तो उसको, ठीक है, तो उसके लिए एग्जेक्टिव सेक्रेटरी बनाया गया है इस लेडी को। नाउ ये पैरामीटर्स मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी करंट में ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इस लिस्ट में हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज? ओके, तो ये देख सकते हो आप 46 हैं अभी करंट में, अफ्रीका में है 33। तो इसका मतलब अफ्रीका में पॉवर्टी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अफ्रीका में आई विल से जो इलिटरेसी है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, न्यूट्रिशन हेल्थ में काफी पीछे है, एक्सपोर्ट्स में काफी पीछे है। तो ऐसी कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन कहां रखता है? अपनी एलडीसी लिस्ट में। क्लियर है? तो अफ्रीका से 33 कंट्रीज हैं, देखिए यहां पर, सुडान, देन दिस सेनेगल, माली, नाइजर। तो ये देखो कितनी सारी कंट्रीज हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट जब आप देखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहां पर आ जाऊं, एशिया से 9 कंट्रीज हैं जो कि इस लिस्ट में है। एशिया से कितनी कंट्रीज हैं इस लिस्ट में? सो दैट इज 9। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस। ठीक है, तो ये सारा देखो आप, यहां पर कुछ आइलैंड कंट्रीज भी हैं। क्लियर? देन कैरिबियन है और 3 पैसिफिक है। ठीक है, तो टोटल कितनी कंट्रीज हैं इस लिस्ट में? सो दैट इज 46 एज ऑफ 2020, दिसंबर 2020। तो सभी कंट्रीज इस लिस्ट से बाहर निकलना चाहती हैं, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस की एक, आई विल से दैट इज इकोसैक। ठीक है, इकोनॉमिक एंड दिस जो मैंने बताया था आपको, ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि हेल्प करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो मेन ऑर्गेनाइजेशन तो ये ही है, और हर कोई कंट्री इस लिस्ट में से बाहर निकलना चाहती है। ठीक है, तो एग्जेक्टिव सेक्रेटरी एक, आई विल से, एक फीमेल को बनाया गया ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनका नाम क्या है? दैट इज प्रीति सिन्हा। इंपॉर्टेंट नेम है हमारे लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट एक न्यूज है रिलेटेड टू फीमेल। तो अभी तक हम 3 फीमेल, 2 फीमेल डिस्कस कर चुके हैं, मैरी कॉम एंड सेकंड वन इज प्रीति सिन्हा। ठीक है, मैरी कॉम एंड सेकंड वन इज प्रीति सिन्हा। थर्ड वन दैट इज, आई विल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दीज टू, सो दैट इज दिस। ये जो लेडी हैं दैट इज नगोजी ओकोंजो एवेला। नगोजी ओकोंजो एवेला, so first women to lead WTO, very important organization, World Trade Organization, World Trade Organization। ठीक है, तो हेड किसको बनाया गया है? कौन लीड करेगा? विमेन, फर्स्ट विमेन है ये। क्लियर है? तो ये नाइजीरिया से हैं, नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट हैं, दैट इज नगोजी ओकोंजो। नगोजी ओकोंजो। अगर मैं ये बोलूं कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्लियर है?
सो शी हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन टू टेक दिस पोजीशन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है किसी फीमेल को इसका हेड बनाया गया इस ऑर्गेनाइजेशन का, डब्ल्यूटीओ का, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, सो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। ठीक है, तो जो रेगुलेट कहां करने, जो रूल बनाता है, जो उसे कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सो दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है किसी फीमेल को उसका हेड बनाया गया है, और ये फीमेल कहां से है, कौन सी कंट्री से? अगेन इंपॉर्टेंट, नाइजीरिया, नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट हैं ये। क्लियर है? So that is Ngozi Okonjo. Ngozi Okonjo is important name for us. Ngozi Okonjo. कब स्टार्ट हुआ है यार ये? अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बात करता हूं WTO की, इट ऑफिशियली स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 1995। ठीक है, इससे पहले एक मैराकेश एक जगह है, मैं बताऊंगा, वहां पर एग्रीमेंट हुआ था, और जिसने गैट को रिप्लेस किया था। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो WTO बना है, इसने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया? सो दैट इज गैट। जब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे कि गैट का क्या फंक्शन था और WTO में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? तो ये जो गैट था, सो दैट वाज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। कई बार क्वेश्चन पूछा गया गैट की फुल फॉर्म बताओ, गैट की फुल फॉर्म बताओ, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1948 में। इसे किससे रिप्लेस कर दिया गया 1995 में? सो दैट इज WTO से। और WTO में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है किसी फीमेल को उसका हेड बनाया गया। कहां से है ये? नाइजीरिया से हैं। सो दैट इज नगोजी ओकोंजो। तो कितने मेंबर हैं इसके, कितने कंट्रीज इसके मेंबर हैं? सो दैट इज 164। 164 कंट्रीज क्या हैं? WTO के मेंबर्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो डायरेक्टर जनरल बोलते हैं जो इसके, जो भी WTO को हेड करता है, तो उसे क्या बोला जाता है? डायरेक्टर जनरल। तो रूल्स बनाने हैं ट्रेड से रिलेटेड बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में? सो दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इससे पहले कौन सी होती थी 1948 से? सो कौन सी होती थी? गैट। ठीक है, तो गैट को किसने रिप्लेस कर दिया? WTO में। WTO में मेजर जो डेवलपमेंट है वो क्या है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कोई फीमेल इसे हेड करेगी। ठीक है, कहां से है वो? नाइजीरिया से। तो रिसेंटली ये न्यूज में था, दैट इज मार्च 2021 में था ये न्यूज में। ठीक है, और इनसे पहले कौन थे? ब्राजील के, आई विल से, जो WTO के जो डायरेक्टर जनरल थे, ब्राजील से थे एक पर्सन। सो दैट वाज दिस रोबर्टो एजोवेडो। रोबोटो एजोवेडो। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो करंट में अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है WTO कौन हेड कर रहा है, कौन कर रहा है, दैट इज नोगोजी ओकोंजी। नोगोजी ओकोंजो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं कुछ हमारे लिए। ठीक है, तो रोबोटो एजोवेडो को रिप्लेस किया है किसने? नोगोजी ओकोंजो। कब बना है? 1995 में बना है। किसको रिप्लेस किया था? गैट को रिप्लेस किया था। कितने मेंबर्स हैं इसके? 164। कितने मेंबर्स हैं इसके? 164। अगेन WTO के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्लियर स्टूडेंट्स? हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेम इंपॉर्टेंट है यार। करंट में डायरेक्टर जनरल कौन है? कब फॉर्म हुआ था? 1995 में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके फॉर्म किया गया है इसे? गैट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा गया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं यहां से कई बार। ठीक है, और इस लेडी से पहले कौन था? ब्राजील से थे एक पर्सन, सो दैट वाज रोबोटो एजोवेडो। ठीक है, उनको रिप्लेस किया है इस नाइजीरियन फीमेल ने, नाइजीरियन विमेन ने। ओके, देन तो कंट्रोल करता है इंटरनेशनल ट्रेड को बिटवीन द नेशंस। देन दिस एग्रीमेंट दैट इज मरकेश एग्रीमेंट। ठीक है, ये मरकेश एक जगह है मोरक्को में, मोरक्को में एक जगह है मरकेश। ठीक है, जहां पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। 123 नेशंस ने उस टाइम इस एग्रीमेंट को साइन किया था कि जितने भी लॉज हैं वो सारे हम मानेंगे। ठीक है, रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सारा इसमें था। ठीक है, तो मैराकेश एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे हमारे लिए गैट इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है, गैट को रिप्लेस कर दिया 1995 में किसने, इसने, डब्ल्यूटीओ ने। ठीक है, करंट में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो एक विमेन है, नाइजीरिया से हैं, दैट इज नोगोजी ओकोंजो। कितने मेंबर्स हैं इसके, 164 हैं। इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, सो दैट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, आई विल से, एक स्कीम है बहुत ही, आई विल से वर्ल्ड की लार्जेस्ट, अगर मैं हेल्थ स्कीम की बात करूं तो वो हमारे यहां से है, इंडिया से। तो दैट इज आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम। हाँ जी। तो अभी क्या हुआ है, एक न्यू सीईओ को अपॉइंट किया गया है, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आयुष्मान भारत। ठीक है, कौन बने हैं, सो दैट इज दिस फेलो, सो दैट इज आर एस शर्मा, आर एस शर्मा। RS Sharma has been appointed as the new Chief Executive Officer of Ayushman Bharat scheme और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, which is an insurance scheme by National Health Authority। ठीक है, तो आयुष्मान भारत का ही आई विल से एक फर्दर पार्ट है, क्या है, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि एक इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। माई क्लियर स्टूडेंट। तो इसके जो न्यू सीईओ हैं वो किसको अपॉइंट किया गया, सो दैट इज दिस फेलो, सो दिस फेलो इज आर एस शर्मा। क्लियर है। सो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इंदु भूषण को रिप्लेस किया है, और ये 3 साल तक क्या रहेंगे, सीईओ रहेंगे किसके, आयुष्मान भारत के। तो इन्होंने एज चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। ओके, और इसके अलावा ये हेड भी हैं ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑन टेक्नोलॉजी एंड डाटा मैनेजमेंट टू कम्बैट कोविड-19 एंड कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कोविन। ठीक है, देन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPM JAY। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज अ कंपोनेंट, इज अ कंपोनेंट है, ये जो योजना है कंपोनेंट है अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। ओके, तो इस स्कीम में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज देती है टू 40% ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जो 40% जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री को, हमारे कंट्री की, उसको फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, किसके अंडर आता है, आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंडर आता है। ठीक है, योजना का क्या नाम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, उसके न्यू सीईओ, आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है, जो उसका न्यू सीईओ है, वो किसको बनाया गया है, दिस फेलो, सो दैट इज आर एस शर्मा। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने, इंदु भूषण को। कब लॉन्च हुई थी ये स्कीम, 2018 में हुई थी, झारखंड में हुई थी। किसने लॉन्च किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। ये क्या करती है इसकी स्कीम के अंडर, इट प्रोवाइड्स अ कवर ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। तो ये आपसे डायरेक्टली वहां पर डाटा पूछा जा सकता है। ठीक है, जो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है अंडर आयुष्मान भारत। ठीक है, तो इसमें यार ये कितना इंश्योरेंस कवर देता है, सो दैट इज ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ओके, so it was launched with the aim of achieving the universal health coverage। तो 2018 में से स्टार्ट किया है। तो अगर आप आयुष्मान भारत पर जाएंगे, वहां पर अगर आप गूगल पर आयुष्मान भारत करते हैं तो ऐसा एक पेज आएगा वहां पर, सो दैट इज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। ठीक है, इट विल कवर 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। ठीक है, तो कितनी फैमिलीज को कवर करेगा ये प्रोग्राम, सो दैट इज 10 करोड़। ठीक है, बेनिफिशियरीज कितने रहने वाले हैं, अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़। 10 करोड़ फैमिलीज, पर्सन की बात करूं, सो दैट इज 50 करोड़। ठीक है, क्या कवरेज रहेगा, अप टू 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, एंड और ये कौन सी दो स्कीम्स को, जो कि ऑलरेडी जो दो स्कीम्स चल रही थी उसको सबस्यूम किया गया है। ठीक है, उन्हें कंबाइन करके ये बनाया गया है, सो दैट इज आई विल से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। क्लियर है, तो इन दो, ये जो योजना ऑलरेडी चल रही थी, इनको सबस्यूम किया गया है, इन्हें इसमें क्या कर दिया गया है, सबस्यूम कर दिया गया है। क्लियर है, इसमें मिला दिया गया है। ठीक है, तो अब ये किसके अंडर आएंगे, सो दैट इज आयुष्मान भारत।
सो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, तो ये ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। सो अप टू ₹5 लाख, सो देर विल बी, आई विल से फ्री आपका इलाज रहने वाला है। देन 10 करोड़ फैमिलीज को कवर करेंगे और 50 करोड़ पर्सन को। सो यू विल बी गेटिंग, आई विल से दैट इज कैशलेस सर्विसेज इन बोथ प्राइवेट एंड दीज पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो इसका अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगर इस प्रोग्राम का सीईओ बनना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सो आर एस शर्मा वॉज इन न्यूज। आर एस शर्मा वॉज इन न्यूज, तो इंपॉर्टेंट फेलो है आर एस शर्मा वी हैव डन। देन 3 फीमेल्स वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, दैट इज डब्ल्यूटीओ डायरेक्टर जनरल नोगोजी ओकोंजो, ठीक है, फर्स्ट टाइम कोई विमेन हेड करेगी, किसको, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को, डब्ल्यूटीओ को, क्लियर। देन मैरी कॉम का मैंने बताया आपको, उसके अलावा मैंने किसकी डिस्कस किया आपके साथ, प्रीति सिन्हा का, क्लियर है। यस, नेक्स्ट वन इज सिडबी। नेक्स्ट वन इज सिडबी। अब देखो क्या है, ये जो काफी सारा जो पार्ट्स है, जैसे नबार्ड है, सिडबी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये इकोनॉमी का पार्ट है, ये इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। तो जब आप कहोगे सर जब मैं इकोनॉमी पढ़ूंगा देन आई विल स्टडी दीज थिंग्स, नो। अभी अगर करंट में है तो इन्हें, अगर आप इसका जो स्टैटिक पोर्शन है उससे भी अगर एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो यहाँ से काफी सारे चांसेस है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिडबी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जैसे हमने नबार्ड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो सिडबी के अगर बारे में आप देखेंगे, सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उसके लिए अगर मुझे फाइनेंस प्रोवाइड करवाना है, सो दैट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इट इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया फॉर ओवरऑल रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, क्लियर स्टूडेंट्स। सो इट कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, लखनऊ में है। तो अगर मुझे शॉर्ट टर्म लैंडिंग फैसिलिटीज देनी है, ठीक है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनमें मुझे शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के लिए अगर उन्हें पैसा उधार देना है, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है सिडबी, ठीक है। एंड सर्विसेज एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए अगर मुझे इंडस्ट्रीज को अगर पैसा प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कौन सी हमारे हमारे पास एक जितने भी हमारे पास माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि माइक्रो फाइनेंस करते हैं, जो कि स्मॉल स्केल पे फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा इसका पर्पस क्या है, रीफाइनेंस फैसिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लैंडिंग टू इंडस्ट्रीज, एंड आल्सो सर्व्स एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एमएसएमई सेक्टर, क्लियर है। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उसको भी जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, या अगर कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनको कंट्रोल करना है तो उसके लिए सिडबी है, क्लियर है। और इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करवाना है स्मॉल एंड मीडियम स्केल, तो उसके लिए भी सिडबी है। तो सिडबी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। कहां पर है, इसके हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है, क्लियर है। एंड कब फॉर्म हुआ था, 1990। कब फॉर्म हुआ था, 1990, अगेन इंपॉर्टेंट ईयर। जैसे 1982 नबार्ड का था, तो ऐसे ही सिडबी का जो ईयर है 1990, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्लियर है। तो एस एस रमन इसके सीएमडी बनाए गए हैं अभी, एस एस रमन इसके सीएमडी बनाए गए हैं, ये न्यूज में थे रिसेंटली, एस एस रमन, क्लियर स्टूडेंट। तो ये न्यूज में थे, ये हमें ध्यान में रखना है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, सो दैट इज कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो कितने साल के लिए उनकी अपॉइंटमेंट की गई है एस एस रमन की, आई विल से, सो दैट इज एस रमन, सो दैट इज न्यू सीएमडी ऑफ सिडबी। सो 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की है, किसने की है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। तो एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, जो कि एडवाइज करती है क्या, एक ये एडवाइजरी बॉडी है जो कि 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो ने इनकी रिकमेंडेशन दी थी कि इनको अपॉइंट किया जाए एज आई विल से एज सीएमडी ऑफ सिडबी, क्लियर है। तो पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनकी गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव करना है, तो उसके लिए एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई है, सो दैट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। और किसने बताया था, पीजे नायक कमेटी ने बताया था कि ऐसा हमें करना है, क्लियर है।
तो पीजे नायक कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही क्या बनाया गया है, दैट इज दिस बैंक बोर्ड्स ब्यूरो बनाया गया है, ठीक है। और किसके बारे में पीजे नायक कमेटी बताती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो रिफॉर्म्स लेके आने हैं, वो क्या क्या रिफॉर्म लेके आने हैं, उस सब के बारे में कौन बताता है, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, सो दैट इज पीजे नायक कमेटी। तो जब भी आप पब्लिक सेक्टर बैंक स्टडी करते हो तो वहां पर इस कमेटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो पूछ लेगा ये जो कमेटी है ये किससे एसोसिएटेड है, ये जो कमेटी है किससे एसोसिएटेड है, सो दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स रेकमेंडेड बाय पीजे नायक कमेटी। क्लियर है? तो पीजे नायक कमेटी कब बनी थी, 2014 में बनी थी, किस बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कुछ यहां पर चेंजेस सजेस्ट किए थे, ठीक है। तो उसी के बाद बैंक बोर्ड्स ब्यूरो बनाया गया, ठीक है। और बैंक बोर्ड्स ब्यूरो ही क्या बताता है, रेकमेंड करता है सिलेक्शन ऑफ चीफ्स ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सिडबी। तो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो ने ही इनका नेम रेकमेंड किया है एज सीएमडी ऑफ व्हाट, सिडबी। आई एम क्लियर स्टूडेंट? ओके। तो ये था सिडबी दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके। तो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है मैं इसे इधर ही ओवर करूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया है, एक तो सिडबी के बारे में हमने स्टडी किया है जो कि 1990 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसके न्यू सीएमडी बने हैं, सो दैट इज एस रमन, ठीक है। किसने रेकमेंड किया है, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो ने किया है, जो कि फर्दर कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया हुआ है, सो दैट इज पीजे नायक कमेटी, ठीक है। जो कि क्या रेकमेंड करती है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें रिफॉर्म्स को सजेस्ट कौन करती है, रेकमेंड कौन करती है, सो दैट इज पीजे नायक कमेटी। माय क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमें ध्यान में रखना है थोड़ा सा। ओके, देन आयुष्मान भारत वी हैव कवर्ड। आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है इसका एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो आयुष्मान भारत के न्यू सीईओ बनाए गए हैं, किसको बनाया गया न्यू सीईओ, सो दैट इज दिस फेलो, सो दैट इज दिस फेलो नेम इज आर एस शर्मा, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस, ठीक है। एंड इसने कौन सी, आई विल से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया था 95 में, सो दैट इज गैट, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है किसी फीमेल को इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया, उनका नाम क्या है, नोगोजी ओकोंजो, जो कि कौन सी कंट्री से हैं, नाइजीरिया से हैं, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर कहां पर हैं डब्ल्यूटीओ के, सो जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड। कितने मेंबर्स हैं इसके, दैट इज 164, 164। इनसे पहले इसके डायरेक्टर जनरल कौन थे, सो दैट वाज रोबर्टो, दैट वाज रोबोटो एजोवेडो। रोबोटो एजोवेडो कहां से थे, ब्राजील से थे। हाँ जी। कितनी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सो दैट इज 46, ठीक है, 46 हैं। इन कंट्रीज को हेल्प करती है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ की, जो मैंने बताया था आपको मेन ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। और इसमें फर्दर एक आई विल से दैट इज देयर इज अ कंपोनेंट दैट इज यूएनसीडीएफ, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ठीक है। और एक इंडियन ओरिजिन की फीमेल को इसका क्या बनाया गया है, यहां पर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया गया है इसका यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। उस लेडी का नाम क्या है, सो दैट इज प्रीति सिन्हा, प्रीति सिन्हा। काम क्या करना है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, उन्हें जो एलडीसी की लिस्ट है जिसे कि यूएनओ बनाता है, ठीक है, यूएनओ अनाउंस करता है, ऐसी कंट्रीज को उस लिस्ट से बाहर लेकर आना है। क्लियर है? तो 46 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें अभी भी, जिन कंट्रीज में अभी भी ज्यादातर अफ्रीका से हैं, जहां पे पॉवर्टी काफी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ, इलिटरेसी, ठीक है, सबसे आगे हैं, ठीक है। माल न्यूट्रिशन में सबसे आगे हैं, क्लियर, इल हेल्थ में सबसे आगे हैं। ऐसी काफी सारी कंट्रीज हैं, 46 कंट्रीज हैं। तो उसके लिए कैपिटल डेवलपमेंट फंड बनाया गया, ठीक है। और उसको इंडियन ओरिजिन की जो फीमेल हैं, सो दैट इज दिस प्रीति सिन्हा, जिन्हें की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी बनाया गया है, किसका, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आने वाला है डायरेक्ट, यूएनसीडीएफ, ठीक है, यूएनसीडीएफ के न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी किसको बनाया गया, प्रीति सिन्हा।
कुछ नेम्स मैंने बताए, उसके बाद मैंने कुछ अवार्ड्स आपको बताए थे। हाँ जी, ये अवार्ड्स मैंने बताए थे, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, देन उसके बाद पद्म अवार्ड्स बताए थे, सेकंड हाईएस्ट पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण, फोर्थ हाईएस्ट पद्म श्री। मैरी कॉम के बारे में मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। मैरी कॉम को क्या किया गया, रिसेंटली was appointed as the chairperson of International Boxing Association Champions and Veterans Committee। तो AIBA की एक कमेटी है, दैट इज चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी, उसका क्या बनाया गया, चेयरपर्सन बनाया गया मैरी कॉम फ्रॉम इंडिया। क्लियर है। और AIBA के प्रेसिडेंट कौन है, दैट इज उमर क्रेमलिन। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ 5 to 6 नेम्स आपके साथ आज डिस्कस किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछ के उनके नेम से रिलेटेड, उनकी कंट्री से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार नेम से ही क्वेश्चन पूछा जाए कि किसको अपॉइंट किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन, CMD, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, कोई जरूरी नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो ये इसको इसी आई विल से, ये जो प्रेजेंटेशन है इसको ही मैं अपडेट करके आज आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम और कुछ अपॉइंटमेंट्स के साथ मैं मिलूंगा, और पर्सन इन न्यूज के साथ आपको मिलूंगा, जिसमें वी विल डिस्कस फर्दर। ओके, सो टिल देन, थैंक यू, कीप वॉचिंग योर पीडिया, कीप प्रिपेयरिंग, थैंक्स वंस अगेन।